नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं समझता हूँ आप भी कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लेकर आया हूँ। नया पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी कन्नड़ में है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಎರಡು ಗಿಳಿಗಳ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಎರಡು ಗಿಳಿಗಳ ಕತೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಗಿಳಿಗಳಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಡು, ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ 3 ಗಿಳಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಗಿಳಿ, ಅದರ 2 ಮರಿಗಳು. ಹೀಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಿಗೊಬ್ಬ ಶಿಕಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಶಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದು ಆ ಮರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಗಿಳಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆರಡು ಗಿಳಿಗಳು ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಒಂದು ಗಿಳಿಯನ್ನು ಅವನು ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧು ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಧು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸಾಧುವಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾಧು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. 2 ಗಿಳಿಗಳೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಗಿಳಿ ಸಾಧುವಿನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಳಿ ಶಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ. 2 ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಆ ದೇಶದ ರಾಜ ಬೇಟೆ ಆಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಬೇಟೆಗಾರನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಗಿಳಿ ಈ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಗಿಳಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧುವಿನದ್ದು. ಸಾಧುವಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಗಿಳಿ ಈ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಅತಿಥಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಈ ಒಂದು ಗಿಳಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೊಲ್ಲು ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಧು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಸಾಧು ಎಲ್ಲ ಉಪಚಾರವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಧುವಿನ ಆ ಒಂದು ಕುಟೀರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಂತಹ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಧುವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈಗ ಬರುವಾಗ 2 ಗಿಳಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, 2 ಗಿಳಿಗಳ ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ? ಆವಾಗ ಸಾಧು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಗಿಳಿ ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಗುಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಗಿಳಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರನ ಹತ್ರ ಬೆಳೀತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಗಿಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಳೀತು ಅಥವಾ ಸಾಧುವಿನ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತದೆ. बच्चों, इस कन्नड़ की एक कहानी सुनने के बाद आप सोचते होंगे, मैं भी कुछ विचार इस कहानी से संबंधित बताना चाहता हूँ. यहाँ 2 तोते हैं, फिर भी उसके जो गुण है
अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जिस परिवेश में मानव या किसी प्राणी रहते हैं उसी परिवेश से संबंधित आदतों को सीखते हैं। इस विचार से संबंधित एक लघु नाटिका है बाल शक्ति। आज हम बाल शक्ति लघु नाटिका के द्वारा अच्छे बुरे गुणों के संबंध में 6 बच्चे मिलकर, रामू, श्यामू, मनोज, किशोर, ये सभी, मोहन, सब मिलकर एक टोली बनाकर अच्छे आदतों को अपनाने के प्रयत्न करते हैं। इससे संबंधित एक लघु नाटिका के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले बाल शक्ति का लेखक है जगतराम आर्य। जगतराम आर्य का जन्म देखिए, जगतराम आर्य का जन्म 1910 में हुआ। उस चित्र देखिए पहले, कब हुआ? 1910 में हुआ, दिसंबर 16 में हुआ। हुना हिमाचल प्रदेश में एक गांव है। हिमाचल प्रदेश में एक गांव है हुना, इस गांव में इसका जन्म हुआ। बहुत बड़े देशभक्त थे जगतराम आर्य बहुत बड़े देशभक्त थे, इसलिए इसकी जुड़ाव भगत सिंह से है। भगत सिंह से कई क्रांतिकारी जो घटना हो उनसे जुड़े रहे, इसलिए जगतराम आर्य एक बहुत सबसे बड़े देशभक्त थे। इनका जन्म 1910 में हुआ, उनका मरण 1993 में अगस्त 4 में इसका देहांत हो गया। समझ गए? जगतराम आर्य एक सबसे बड़े देशभक्त थे। इससे लिखित एक लघु नाटिका है, कौन सा है? बाल शक्ति। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। पहले मैं पात्र परिचय कराता हूँ। देखिए, पात्र परिचय। रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज 4 छात्र हैं। 4 नहीं, 6 छात्र हैं। रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज। एक अध्यापक है, एक कलेक्टर साहब है, एक बुजुर्ग है। पात्र परिचय के बाद हम जाएंगे पहला दृश्य देखेंगे। पात्र परिचय के बाद पहला दृश्य है, रामू और श्यामू कंचे खेलने में व्यस्त है। रामू श्याम से कहता है, हरे वाले को मार। श्यामू मारता है। श्यामू, लग गई ना, ला, अब सारे कंचे मेरे हो गए। रामू, तेरे कैसे हो गए? निशान तो नीले वाले को लगा है, हरा कंचा तो अलग पड़ा है। रामू हरे वाले को मारने को कहता है श्याम को। कंचे का मतलब जानते हैं ना, कंचे को मारने के लिए कहता है। कंचे का मतलब गोली, कन्नड़ में गोली कहते हैं। देखिए, हम बचपन में खेलते थे गोली या कंचे। रामू श्यामू से कहता है हरे वाले को मारने के लिए। श्यामू मारता है, हरे वाले को ही मारता है, लेकिन मारने के बाद श्यामू कहता है, निशान तो नीले वाले को लगा है, हरा कंचा तो अलग पड़ा है। तुम हरे कंचे को नहीं मारा, नीले कंचे को मारा है। इस बात सुनकर श्यामू कहता है, झूठ मत बोल। झूठ का मतलब क्या है? कन्नड़ में सुಳ್ಳು। झूठ का विलोम शब्द क्या है? सच। झूठ का विलोम शब्द क्या है? सच। श्यामू, झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है, दे दे कंचे वरना मार दूंगा। श्यामू रामू को धमकी देता है, क्योंकि ठीक से हरे रंग वाले कंचे को ही मारा है। झूठ मत बोल रामू, तू सदा खेल में बेईमानी करता है, मुझे मेरे कंचे दे दो वरना मार दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया? रामू के पास गया और रामू के कमीज का कॉलर पकड़ता है। कमीज का कॉलर
इस तरह पकड़ता है। रामू, छोड़, मेरी कमीज छोड़। मोहन, अरे अरे क्यों झगड़ रहे हो। इस तरह दोनों आपस में लड़ रहे थे, रामू और श्यामू। उसी वक्त वहाँ मोहन आता है। अरे अरे क्यों झगड़ रहे हो। श्यामू, यह मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। बेईमानी का मतलब क्या है? ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. यह मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। रामू, यह झूठ बोल रहा है। मोहन आकर पूछता है श्यामू से, क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों। इस बात सुनकर श्यामू बोलता है, रामू के बारे में शिकायत करता है। क्या शिकायत करता है? शिकायत करता है, यह मेरे कंचे नहीं देता है। रामू मेरे कंचे नहीं देता है, खेल में बेईमानी करता है। इस बात सुनकर वहाँ खड़े हुए वहाँ रामू कहता है, यह झूठ बोल रहा है मोहन भैया। मोहन भैया को दोनों अपने अपना विचार उसके सामने रखते हैं, लेकिन मोहन इस सब को देखकर कहता है, देखो अब तो स्कूल का समय हो रहा है, घंटी बजने वाली है, यह फैसला बाद में कर लेना। उस समय मोहन दोनों को जो विचार है सुनने के बाद कहता है, देखो घंटी बजने वाली है, स्कूल जाने का समय हो रहा है, हम स्कूल जाएंगे, बाद में इसका निर्णय लेंगे। फैसला का मतलब क्या है? फैसला का मतलब है निर्णय, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा अब तो छोड़ता हूँ, पर शाम को दे देना। श्यामू कहता है, रामू मैं आज या अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन शाम को मुझे मेरे कंचे वापस देना ही पड़ेगा। रामू, चल चल अपना रास्ता पकड़, बड़ा आया कंचे लेने वाला। इस बात सुनकर अपने अपनी तरफ से अब स्कूल जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। मोहन, अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या? स्कूल जाते समय मोहन रामू से पूछता है, अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या? रामू, तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन नहीं जाने से, स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? रामू बोलता है मोहन को, क्या बोलता है? तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? उसके बदले वो प्रश्न पूछता है, एक दिन अगर स्कूल नहीं गए तो क्या हो जाता है? तुम जाओ। श्यामू मोहन भैया से कहता है, मोहन भैया यह तो कई दिनों स्कूल नहीं आता है, जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल से छुट्टी ले लेता या छुट्टी कर देता है। आज गणित का काम दिखाना है ना। श्यामू मोहन भैया से कहता है रामू के बारे में, मोहन भैया कई दिनों से स्कूल नहीं आया है रामू, क्योंकि जिस दिन गृह कार्य दिखाना है, जिस दिन गृह कार्य दिखाना है उस दिन रामू स्कूल नहीं आता है। उस दिन रामू बिल्कुल स्कूल नहीं आता है, क्योंकि शिक्षक को गृह कार्य दिखाना पड़ता है, आए तो इसलिए छुट्टी ले लेता है। मोहन, रामू दिखाओ तो गणित की कॉपी। रामू, ओह तो मैं घर भूल आया हूँ। मोहन रामू से पूछता है, रामू गणित का जो होमवर्क है दिखाओ। रामू बोलता है, मैं घर भूल आया हूँ। होमवर्क कहाँ है? घर में है। मोहन, देखो रामू यह ठीक नहीं है, देखो रामू यह ठीक नहीं है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर एक झूठ को छिपाना चाहिए तो
कहीं झूठ बोलना पड़ता है। ಕನ್ನಡ में ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ। मोहन बोलता है, मोहन इस विचार पर कहता है, देखो मोहन, देखो रामू, यह ठीक नहीं है। देखो रामू, यह तो ठीक नहीं है। एक झूठ को छिपाने के लिए कहीं झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को अगर छुपाना चाहिए तो अथवा एक छुपाना हो तो हम कहीं झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए ध्यान दीजिए बच्चों, आप भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर एक झूठ को छुपाना चाहिए तो कहीं झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए पहले से ही हम क्या करना चाहिए, सच बोलना सीख लेना चाहिए। सच बोलने की जो आदतें हम अपना जीवन में अपनाना चाहिए। शामू, चलो मोहन भैया इसे रहने दो, स्कूल चलने में देर हो रही है, चलो दोनों चल जाते हैं। रामू कंचे खेलने लगता है। उसके बाद रामू को इस विचार के बाद कहने के बाद मोहन और शामू स्कूल जाता है। बाद में दूसरा दृश्य में क्या है, यहाँ रामू और शामू झगड़ा कर रहे थे। मोहन आया, मोहन और शामू के बीच और रामू के बीच कुछ वार्तालाप हुआ। उसके बाद क्या हो गया, सभी स्कूल गया लेकिन रामू नहीं गया। दूसरा दृश्य में क्या है, दूसरा दृश्य स्कूल में घटता है। 5 बालक एक कोने में एकत्रित होकर बात कर रहे हैं। किसके बारे में देखेंगे। शामू, देखो ना मोहन भैया, आज रामू ने खेल में फिर से मेरे साथ बेईमानी की। मोहन भैया आप देख लिया, आज भी रामू क्या किया, खेल में, खेल का अर्थ क्या है, खेल का अर्थ है कन्नड़ में आटा। आज भी कंचे खेलते समय रामू ने क्या किया, बेईमानी की। उसी समय वहाँ संजय मौजूद था। उन्होंने भी रामू के बारे में शिकायत की। क्या शिकायत की, मोहन भैया बात बात में रामू झूठ बोलता है। बात बात में रामू झूठ बोलता है। मनोज, मोहन भैया मैंने सुना है कि 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता, चाहे वो झूठ बोलना ही क्यों ना हो। मनोज का इस विचार को सुनकर शामू तक्षण उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है, मनोज क्या प्रश्न रखता है, देखो 12 साल से नीचे के बच्चे, 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, उम्र ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸು, बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता। कब, अगर 12 वर्ष से नीचे की उम्र वाले बच्चे गलती करे तो, चाहे वह झूठ बोलना ही क्यों ना हो। इस बात को सुनकर शामू बोलता है, क्या बोलता है, अरे मूर्ख, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की। बच्चों ध्यान दीजिए, 12 साल से नीचे की जो उम्र है, जो बचपन है, जो बचपन में जो सीखते हैं, जो अच्छे और बुरे आदतें सीखते हैं, जीवन के अंत तक उसका जो उपयोग हम कर लेते हैं। अगर अच्छे आदतों को हम अपनाए तो जीवन में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए बचपन में जो आदतें हम सीखना चाहिए, अच्छे आदतों को या अच्छे अभ्यासों को हम अपनाना चाहिए। यह बात ध्यान से सुनिए और मन में रखिए। इस बात को सुनकर शामू कहता है, अरे मूर्ख, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की।
बचपन का जो समय है, अच्छे आदतें डालने का जो समय है, अब जो आदत पड़ गई आएगी वह सदा साथ रहेगी। जो बचपन में जो आदत पड़ जाता है, आदतों को अपनाते हैं, वह सदा साथ रहती है। इसलिए बचपन में अच्छी आदतों को हम अपनाना चाहिए। किशोर, गुरुजी भी यही कहा करते थे, मोहन, हाँ, हमें सभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए, इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। संजय, मनोज और श्यामू और किशोर चारों का बात सुनकर मोहन कहता है, सही है, आप जो कह रहे हो या आप लोग जो विचार प्रस्तुत कर रहे हो सब ठीक है। हम अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए या अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। इसके लिए कुछ हम सब मिलकर कुछ काम करना चाहिए। किशोर, संजय, क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए? मोहन, हम एक टोली बनाएंगे। टोली का मतलब क्या है? टोली का मतलब है ಗುಂಪು, ಒಂದು ಗುಂಪು, ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ। एक टोली बनाएंगे। मोहन, इस टोली में हम रामू को भी शामिल करेंगे और उसकी गंदी आदतें छुड़वाएंगे। एक टोली बनाएंगे, टोली में रामू को भी शामिल करेंगे। शामिल होने के बाद हम क्या करेंगे? उसकी जो गंदी आदतें हैं उसे छुड़वाएंगे। उसी वक्त स्कूल की घंटी बजती है, सभी स्कूल जाने की तैयारी में रहते हैं या क्लासरूम में जाने की तैयारी में है। मोहन, चलो अब कक्षा में चले, अब कक्षा में चले, शाम को हम सब मिलकर इसके बारे में सोचेंगे। बाद में अंत में कहता है मोहन, रामू को कौन लाएगा? हम टोली तो बना सकते हैं, टोली का रूप बना सकते हैं, उद्देश्य को रख सकते हैं, लेकिन रामू को इस टोली में कौन लाएगा? उस समय संजय ने कहा, उसे मैं ही बुला लाऊंगा। संजय ने क्या कहा? रामू को इस टोली में या इस ग्रुप में हम लाता हूँ, वह मेरी बात मानता है। संजय का बात कौन मानता है? रामू मानता है, इसलिए मैं उसे लेकर आता हूँ। इस तरह बातचीत करने के बाद सभी छात्र, संजय, मनोज, श्यामू, मोहन सभी स्कूल में या क्लास जाते हैं या कक्षा में जाते हैं। तीसरा दृश्य क्या है? मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बैठे बातें कर रहे हैं। तीसरा दृश्य में क्या हो रहा है? जो 6 छात्र हैं सभी मिलकर बातें कर रहे हैं। इस टोली में श्यामू भी शामिल है। इस टोली में रामू भी शामिल है। रामू को कौन लेकर आया? गुड, संजय ने लेकर आया। मोहन, आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। सब मिलकर एक टोली को आरंभ किया। उस टोली का नाम रखा, क्या रखा? उस टोली का नाम रखा बाल शक्ति। रामू, उधर रामू भी है। रामू पूछता है, सभी
सहपाठियों से, क्या पूछता है, यह टोली क्या करेगी, यह टोली क्या करेगी। संजय, सबसे पहले तो हम अपने इन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते। इस टोली का मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी छात्र मिलकर इस टोली को इसलिए बनाया है, अच्छे आदतों के द्वारा हम अच्छे बनेंगे। अच्छे आदतों को अपनाने के लिए एक टोली बनाया है। संजय ने कहा, इस टोली का पहला उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है नियमित रूप से स्कूल नहीं आने वाले बच्चों पर ध्यान देना या स्कूल में उसको आने के लिए मार्गदर्शन देना या स्कूल लेकर आना। पहला उद्देश्य क्या है इस टोली का। इस टोली का पहला उद्देश्य है नियमित रूप से स्कूल नहीं आने वाले बच्चों पर ध्यान देना। किशोर, ठीक है। दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है इस टोली का। ये बाल शक्ति टोली का पहला उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है नियमित रूप से स्कूल नहीं आने वाले बच्चों पर ध्यान देना। दूसरा क्या है, दूसरा काम स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। क्या करना, स्कूल के जो परिसर है उसको स्वच्छ रखना दूसरा उद्देश्य है। तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना। हम रोज़ 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना। इधर बच्चे मिलकर एक नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। पाठशाला साफ होने से एक पाठशाला मात्र स्वच्छ हो जाता है, लेकिन ये बच्चे और भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस विषय में, जो गांव के बारे में भी सोचने लगे हैं। तीसरा उद्देश्य रखा है गांव की गंदगी को दूर करना। इस तरह संजय, किशोर, रामू, मोहन सभी मिलकर क्या किया, 3 उद्देश्य रखकर एक बाल शक्ति नाम का एक टोली बनाया। इसलिए बाल शक्ति इसलिए रखा है, ये सभी छात्र मिलकर, देखिए रामू, श्यामू, मोहन, किशोर, संजय, मनोज, ये 6 छात्र मिलकर इस टोली को बनाया है। इसलिए उन्होंने इस टोली का नाम क्या रखा है, बाल शक्ति रखा है। इस बाल शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, अच्छे आदतों को अपनाना। जो बच्चों में बुरे और अच्छे गुण दोनों होते हैं, अच्छे आदतों को डालने से अच्छे गुण को हम अपना सकते हैं। इसलिए बच्चों ने मिलकर क्या किया, बाल शक्ति नामक एक टोली का चयन किया, उसका उद्देश्य भी रख लिया। और अंत में किशोर कहता है, हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। निर्णय लिया बाद में, हम रोज 1 घंटा, हम एक दिन में 1 घंटा गांव की सफाई में व्यतीत करेंगे। व्यतीत नहीं, सफाई में लगाएंगे। मनोज, गांव में कहीं गड्ढे हैं, उसको मिट्टी से डांपना होगा। और एक सजेशन देता है, कौन, मनोज। और भी काम है किशोर भैया, क्या है, गांव में कहीं गड्ढे हैं। गड्ढे का मतलब क्या है, कन्नड़ में गुंडी। गांव में क्या है, बहुत कहीं गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से डांपना होगा। मिट्टी का मतलब
मण्णु डांपना मुच्चुವುದು। और भी क्या कार्य है, गांव में कई गड्ढे हैं उनको मिट्टी में डांपना होगा। ಆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಬೇಕು। श्यामू ने कहा गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे। कूड़ा इसका मतलब क्या है, कूड़ा, कूड़ा का मतलब क्या है, कूड़ा कसा ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, कस कचरा कूड़ा। गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डालें। श्यामू ने कहा हम कूड़ा डालने के लिए एक जगह निश्चित करेंगे, गांव के सभी लोग वहाँ आकर कूड़ा डालने के लिए मार्गदर्शन देंगे या उसको जागरूक करेंगे। मोहन टीम का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना। मोहन अंत में या मोहन अपना विचार सामने रखता है, क्या कहता है, टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना। हरा भरा का मतलब कन्नड़ में क्या है, कन्नड़ में हच्च हसिर हसिरागिसुವುದು। किस तरह हम हरा भरा करा सकते हैं, या गांव को हरा भरा करना का मतलब क्या है, मतलब है गांव के चारों ओर पेड़ पौधे लगाना। लगाने से क्या होता है, गांव हरा भरा हो जाता है। हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे। घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे। इस बात सुनकर सब अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं और मानते भी हैं। रामू यह तो बड़ा नेक काम है। मोहन, संजय, किशोर, श्यामू सबका बात सुनकर अंत में कहता हाँ यह तो बड़ा नेक काम है। नेक का मतलब क्या है, नेक, मैं इधर लिखता हूँ नेक। नेक का मतलब क्या है, नेक, गुड, ಒಳ್ಳೆಯ, अच्छा काम है, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, हमें कल से ही काम शुरू करना चाहिए। रामू भी मानता है हम कल से ही क्या करेंगे, इस काम को शुरू करेंगे। संजय रामू से कहता है, क्या कहता है, पहले तो यह बता कि तुम नियमित रूप से स्कूल जाइएगा या नहीं। रामू का एक बुरा आदत है, कौन सा आदत, स्कूल नहीं आता है, जाता नहीं, या आता है या नहीं उसको ही पता नहीं है। स्कूल कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, उसी तरह झूठ बोलता है। इस सब बात ध्यान में रखकर संजय ने कहा, किससे कहा, रामू से कहा। रामू से क्या कहा, पहले तू यह बता कि तो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाएगा या नहीं। तक्षण उत्तर दिया रामू, क्या उत्तर दिया, हाँ मैं आऊँगा या जाऊँगा, हाँ शाಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, हाँ शाಲೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ। मनोज हम सबको टोली के नियमों का पालन करना होगा। अंत में मनोज ने कहा, जो टोली बनाया है, टोली का नियम बनाया है, टोली का नियम का पालन हम सब करना ही होगा। सब बच्चे हाँ करेंगे। श्यामू अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूँ, आपकी क्या राय है। श्यामू अंत में टोली का मुखिया चुनता है। मुखिया के रूप में मोहन को चुना लेते हैं। यहाँ मोहन को किस लिए चुना लेते हैं आप समझते हैं।
एक आदर्श बालक है, ईमान है, अच्छे आदतें हैं, अच्छे गुण है, इसलिए मोहन को, और भैया भी है, सबके सबके मतलब क्या है, संजय, रामू, मनोज सभी उसे भैया बुलाते थे और बड़े थे, इसलिए उसको चुन लिया। अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूँ, मोहन का नाम रखता हूँ, आपकी क्या राय है? सभी कहते हैं हमें मंजूर है। अंत में मोहन को इस टोली का मुखिया बना लेते हैं। इस तरह तीसरा दृश्य में एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, टोली बना देते हैं, टोली का नियम निश्चय कर लेते हैं, टोली का मुखिया के रूप में किसको चुनते हैं? मोहन को चुनते हैं। इस तरह तीसरा दृश्य समाप्त होती है। हम विचार करेंगे। कल आप आते समय पाठ या एक लघु नाटिका पढ़िए, पढ़कर जो भी प्रश्न मन में उठते हैं उसको एक पेपर में लिखकर लाइए। कल इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार।